आजकल ये बच्चों में एनजाइटी बहुत है, एंशियसनेस बहुत ज़्यादा है. उसको वो इस कार में आ रहा है, शी इज़ गेटिंग दैट पॉकेट मनी, वो इस कॉन्सर्ट में जा रही है, आई कांट. So you tell me that has actually screen time damaged our children's focus? एकदम डोपामिन मिल रहा है उसको, वो इन्जॉय कर रहा है. वो बच्चा बैठ के 2 पेजेस कैसे पढ़ेगा वो? What is the difference between EQ and Yeah. IQ? So they are different games. So we can think of like Scrub Dump Shrods. उसमें तुम्हारा को स्टडी करते हैं, होमवर्क करते हैं, बट उसके बाद उनसे फिर से पूछा जाए वो चीज़ तो कई बच्चे नहीं याद रख पाते. आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उसके बाद इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को करो कि आप टीचर हो और आप किसी को समझा रहे हो. Hi, today I have a very special guest in my podcast. It's Swati, who is a joyful learning expert. Seems different, but yes, very valuable in today's times when the kids are focusing more on AI. Hi Swati, how are you? Hi, thank you. I'm really good, and thank you for thank you for inviting me to the show. So Swati, tell us more about yourself. Okay. So you just mentioned the joyful learning expert because I'm really working hard where we could make learning really fun, wherein every kid enjoys learning and it doesn't become that padhai karni hai. Right. So the padhai becomes the best part of the day. So for that, I started my own thing. That's by the name Swago. And at Swago, we create smart boxes which are working on the skills that AI can never replace. And of course, they're the boxes and they're playing a lot of games, and in byproduct they're learning and honing their skills. They're increasing their attention span, they're increasing their focus, and they're increasing their expressions and confidence. Yeah. Wow, so need of the hour, right? So let's come up with the questions, right? Yeah, sure. What do you think that if somebody, a child, 95% मार्क्स ले रहा है, राइट? Yeah. तो क्या वो एक्चुअली प्रिपेयर्ड है अपनी लाइफ के लिए इन फ्यूचर? एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं मार्क्स पर, बट देन दिस इज रिसर्च बाय हार्वर्ड इटसेल्फ दैट सेज कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो आपका 20% ऑफ सक्सेस डिसाइड करती है. रियली? यस. इंडिया में तो सारे माँ बाप 99, 98. Exactly. We are all focusing on that. Yeah. But then, no offenses to any big institutions or colleges. I respect and I really want my kids to go there. But then, what I mean is कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं होता है. If you really want कि आपका बच्चा बहुत successful हो, then work upon all the aspects. If it's IQ, work on the EQ as well. So if it's, learning how to speak English, but then make them learn how to communicate as well. So I think working on the skills जो कि हम कहते हैं ना कि AI तो jobs खा लेगा, AI एक तो coding finish कर चुका है. So but then there are skills which we, as parents सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे नहीं हमें फोकस करना चाहिए. So even if my kid came, कि मम्मा मेरी तैयारी छूट जाएगी पर मुझे यहाँ पे जाना है, so I would like that's okay, मार्क्स एक टेस्ट में कम आ जाएंगे but you really need to go to this class. चाहे वो थिएटर क्लास है, चाहे वो क्रिकेट क्लास है. I think there has to be balance of everything. सारा दिन होमवर्क करना है और किसी और चीज़ पे काम नहीं करना है, that is something I really wouldn't want कि हमें as a parents करना चाहिए. So Swati, what is the number one skill which you feel that today's schools are actually ignoring while taking care of our kids? से इसमें ना आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बट माई अनपॉपुलर ओपिनियन इज प्रॉब्लम फ्रेमिंग रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. Okay. So the World Economic Forum says कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग इज अ बेटर स्किल देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. All right. दैट इज आपको एग्जैक्टली पता हो कि प्रॉब्लम है क्या और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एंड टू बेसिकली आइडेंटिफाई एंड पुट इट इन वर्ड्स. So how can, we do that with our kids? We can play few games. So one is what might this would mean. जैसे कि there's any situation, इस particular situation में और क्या हो सकता था, अगर this person ऐसा नहीं करता तो क्या होता. Giving different perspectives. Different whys and what ठीक and है? how. ये तो Okay. ठीक है. The second is 5-step whys. 5 whys. That is, I wanted to go there. Why? Because I would able to do that.
वाई वुड यू वॉन्ट टू डू दैट, ऐसे करने से क्या होगा, कंटिन्यूइंग इट टू द 5 whys. तो 5 whys तक करते हैं, इट मेक्स द पर्सन गोज डीपर इन टू द थिंग एंड दे एक्चुअली गो टू द रूट्स. ठीक है ना. सो इवन इफ अ पर्सन, बच्चे ने जब स्टार्टअप फाउंडर बनना है या मे बी जब उसको बिजनेस में आना है या कोई जॉब ज्वाइन करनी है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम बहुत फोकस करते हैं, पर प्रॉब्लम फ्रेमिंग और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज इवन important. That's such a new and a different perspective. So why is this that there's certain students who are actually performing averagely in school, but when we talk about life, they do extraordinarily well? ऐसा कैसे होता है और क्या में ऐसा डिफरेंट होता है? ओके, जो एक टॉपर होता है ना, वो हमेशा टॉप करता है मोस्टली, और वो हम कहते हैं वाओ, उसने फेल बहुत कम हुआ होता है. राइट. सो आई थिंक द एवरेज बच्चा है, उसने फेल ओवर सबसे ज़्यादा देखे होते हैं. उसके कई बार बहुत बुरे मार्क्स भी आ रहे हैं. तो जो एक होता है फेल ओवर्स को एक्सेप्ट करना, दैट इन्हांसेस योर रेजिलियंस. ठीक है, दैट रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो रिस्क टेकर हो जाता है ना, उसको लगता है क्या ही हो जाएगा, फेल ही हो जाऊंगे ना. ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. राइट. ठीक है, तो वो रिस्क लेने को तैयार रहता है. एग्जैक्टली. एंड सेकेंड इज परसिस्टेंस. सो परसिस्टेंस, वो बार बार ट्राई करता ही रहता है, क्योंकि दैट्स हाउ दैट ही हैज़ बीन डूइंग ऑल हिज लाइफ. कि वो उसके कम नंबर भी आ रहे हैं, 3 out of 10 भी आ रहे हैं, उसको डांट भी पड़ रही है, अगला टेस्ट फिर से दे रहा है, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करता हूँ. तो शुरू से उसमें वो हैबिट बन जाती है कि अगर फेलियर आए भी तो उसको कैसे टैकल करना है. एंड द थर्ड पार्ट इज इंटेलिजेंस ट्रैप. जितने टॉपर्स और जितने हम हाई इंटेलेक्चुअल उसमें चले जाते हैं ना IQ में, वी गो लॉट इनटू परफेक्शन, लॉट डीप इनटू इट. और क्या होता है, इतना एनालाइज करते हैं. यू टेक अ टॉपर, उसको बोलो कि कंटेंट क्रिएशन करना है. यू टेक एन एवरेज वाला पर्सन, को बोलो कंटेंट क्रिएशन करना है. एवरेज वाला डिफरेंट वेज ट्राई करेगा, और जो इंटेलिजेंट वाला होगा ना कहेगा आई नीड टू बी परफेक्ट, आई नीड टू नो ऑल दी फॉर्मेट्स, मुझे ऐसे ट्राई करना है, मुझे ये करना है. यू गेटिंग मी. सो दिस इज द बेसिक. वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. रिस्ट्रिक्टेड जाता है, उसकी बाउंड्रीज उसकी एनालिसिस में चले जाती है, उसकी परफेक्शनिज्म में चले जाती है. राइट. एग्जैक्टली. तो वो रिस्क टेकिंग नहीं कर पाता है. वो फेलियर्स को वैसे भी एक्सेप्ट करके इतना वो फेलियर्स नहीं इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा टॉप ही कर रहा है, हमेशा अच्छा कर रहा है. एंड परसिस्टेंस डेफिनेटली होगी उसमें भी, क्योंकि वो परसिस्टेंटली टॉप कर रहा है. राइट. ठीक है, बट देन रिस्क टेकिंग नहीं होगा, इतना रेजिलियंट शायद नहीं होगा, तभी एवरेज बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं बड़े होकर, एंड जो टॉपर्स हैं शायद उतना नहीं कर पाते. वाओ. आजकल स्क्रीन टाइम को इतना बुरा बोला जाता है. सो यू टेल मी दैट हैज़ एक्चुअली स्क्रीन टाइम डैमेज्ड अवर चिल्ड्रंस फोकस टू एनी वन पर्टिकुलर थिंग? स्क्रीन टाइम ने फोकस डेफिनेटली ख़राब की है, स्पेशली शॉर्ट्स और दिस मूविंग ट्रांजिशन ने. इट्स लाइक जितना बच्चा रील्स देख रहा है, जितना बच्चा शॉर्ट्स देख रहा है, या फिर वो हाई स्टिमुलेशन वीडियोस देख रहा है जहाँ पे हर 0.5 सेकेंड्स में फ्रेम चेंज हो रहा है, वो डेफिनेटली अटेंशन स्पैन ख़राब कर रहे हैं. ऑलराइट. तो उससे क्या इफेक्ट आता है बच्चों पे? उनको आप सोचो ना, पेशेंस नहीं है. अब वो बच्चे को 2 पेजेस पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि उसको होता है विजुअल्स फटाफट मूव कर रहे हैं, एकदम डोपामिन मिल रहा है उसको, वो इन्जॉय कर रहा है. वो बच्चा बैठ के 2 पेजेस कैसे पढ़ेगा बुक के? उसके लिए इतना बोरिंग हो जाएगा, वो कहेगा यार इट्स सो बोरिंग, आई वांट टू गो बैक टू दैट. एंड ऑफ कोर्स वो एडिक्शन तो है ही है. सो तभी आई ऑलवेज से प्रेफर एक तो TV स्क्रीन रादर देन फोन्स. TV स्क्रीन पे शॉर्ट्स नहीं. राइट. या बट समथिंग विच इज़ वेरी मीनिंगफुल, और दे आर इंटरैक्टिव एज वेल. सो 2 तरह के स्क्रीन टाइम आई ऑलवेज से. 1, अगर कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है, और सेकंड सेकंड इज़ इंटरैक्टिव. जैसे कि क्विज़ चल रहा है, आपको क्विज़ के आंसर्स देने हैं, कोई वर्कआउट की चल रही है, आपको साथ में वर्कआउट करना है, तो बच्चा बेटर कर रहा है अपनी स्किल्स को, अपनी बॉडी को, वो स्क्रीन टाइम अच्छा है. ठीक है, पर अगर वो स्क्रीन सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स देख रहा है, प्लीज़ अपने बच्चों से. तो अगर किसी बच्चे को आदत पड़ गई है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए टू गेट देम आउट ऑफ इट? सी, आप एकदम जब फ़ोन खींच लेते हो ना, वो सबसे ख़राब बात है. यू रियली नीड टू सेट द रूल्स.
और वो रूल्स को आपको भी फर्मली इम्प्लाई भी करना है. और दूसरा, बच्चा सारा दिन अपने पेरेंट्स को ही रोल मॉडल बनाता है. राइट. ठीक है, उसके लिए और कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है. तो आपको भी जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो स्क्रीन्स नहीं देखनी है. क्योंकि जैसा मर्जी बच्चा हो, उसको अपने पेरेंट्स के साथ का क्वालिटी टाइम से ऊपर नहीं होता है कुछ भी, वट एवर इट बी. तो अगर आप भी स्क्रीन्स रख रहे हो, नंबर वन, दे मॉडल यू. और सेकेंडली, यू शुड हैव दैट वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जहाँ पे आपके रूल्स बहुत नाइसली लेड हैं कि इतने से इतने बजे तक स्क्रीन मिलेगा, आप ये देख लो, उसमें ये चैनल्स हैं जो मैंने फाइंड आउट करे आपके लिए. अच्छा. मैं आपके साथ बैठ के देख सकती हूँ. ओके. आप नहीं देख सकते हो अगर आप वर्किंग भी हो और नहीं टाइम है. बट देयर हैज़ टू बी प्लेथोरा. और वो चैनल्स आप डिसाइड करके नहीं दें उनको. उनसे इंटरेस्ट पूछे, क्या देखने का मन है, क्या अच्छा लगता है, वही चीज़ें देखते हैं. जैसे कि माई डॉटर वॉन्टेड टू लर्न जिमनास्टिक्स, और यहाँ मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था टीचर. देन वी स्टार्टेड वॉचिंग दोज वीडियोज़. ओके. तो अब वो फ्री टाइम में भी वही देखती है. सो इट्स लाइक यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट बाय टॉकिंग टू देम. So any certain YouTube channels or any certain videos which you would recommend Yeah. children specific age-wise? Age-wise, okay. So for 3 to 5 years old kids, I would recommend Sesame Street या Sesame Workshop या फिर Bluey अच्छा है, and low stimulations है उसमें. I would not recommend Coco Melon or Little Okay. Baby Mom or ये सब, because I think they're very high stimulating. So 6 to 8 में it's better कि थोड़ी थोड़ी skill add करें. So Art for Kids Hub, that will be great. अच्छा. Yeah. National Geographic channel for kids. So ये वाले channels हैं, उनका interest थोड़ा सा डेवलप करना शुरू करेंगे. Okay. So 8 to 10 में I would always recommend TED Ed. That's my favorite. वो बहुत interesting topics लेकर आता है. And then is Minute Earth. That is also good. And इसमें 8 to 10 में ना even I recommend interactive YouTube channels as well. जैसे Quiz Monsters है, Quiz Blitz है. Okay. वो बहुत सारी quizzes चल रही है, and वो पूरी फैमिली भी enjoy करती है कि किसका आंसर करेक्ट है. And you can even start the quiz of your own interest. Even they are good. So there are channels जहाँ पे बच्चों की डिटेक्टिव स्किल्स को इन्हांस करते हैं कि अच्छा. कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, जस्ट टेल हु इज़ द thief. So all those things I think I really like, and my kids also watch that. So your kids watch what all? Okay. So my kids have their own interest, of course. तो मेरे बच्चों को स्टार्टअप जर्नीज में, इंस्पायरिंग स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है. So the only indulgence I think apart from vacations we had in this summer vacations was the Titan story. We all sat and watched it in a marathon. So we did that marathon of Titan story. हमने सारे 7 episodes इकट्ठे बैठ के as a family देखे. Okay. And my 8-year-old was sitting like that. अब क्या करेगा मम्मा, अब एक और प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको कैसे सॉल्व करेगा, ये लॉसेस में चले जाएंगे, ये इसकी कंपनी बंद हो जाएगी मम्मा. And I was so happy seeing my 8-year-old asking me all those questions. Right. That's so interesting. Yeah. So they even watch. So they even watch this YouTube channel by Shivanshu Agarwal. He brings बहुत सारी short stories of different people. Yes. है ना, कैसे हल्दीराम शुरू हुआ, कैसे अंबानीज ने शुरू किया, उनसे बहुत, वो सारे दिन बैठ के ये लोग देखते हैं. वो पूरा ख़त्म कर चुके हैं उसका चैनल. They found another one that's called Willpower Stories. Willpower Star. या कि उसमें भी सिमिलर अब न्यू स्टोरीज़ हैं विच इज़ इन वर्ल्ड लेवल पर. तो ऐसे ऐसे करके दे कीप ऑन लर्निंग लॉट ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज. अच्छा, that's so nice. Yeah. And that's giving them a perspective of life going forward, how they can, Exactly. do things. एंड दे लर्न सो ब्यूटिफुली, क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे लर्नर्स हैं. अब वो बार जैसे वो फेल, लेट्स से उसके 2 मैचेस थे, लाइक ही इज इनटू क्रिकेट. फर्स्ट मैच में वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया. सेकंड मैच में ही वाज ऑलवेज अ मैन ऑफ मैच. तो वो फर्स्ट मैच के बाद इतना अपसेट था, बट आई सेड कि फेल ही हुए हो तो क्या हो गया, नेक्स्ट मैच भी तो होगा नेक्स्ट डे. हाँ मम्मा, वो तो सब फेल होते हैं और फेल हुए से ही बेटर होते हैं. Right. सो दैट वाज हिज They आंसर. have that idea in their mind. That's so nice. Yeah. So you had mentioned about EQ and IQ, right? So first tell us that what is the difference between EQ and Yeah. IQ, and what is more important? See, a lot of stress is given on IQ, that is intelligence quotient, कि जो पढ़ाई से बहुत सारा ब्रेन पजल से, एंड आई रियली वांट कि हम बच्चों पे उस पर स्ट्रेस दें, ठीक है.
बट उसके साथ साथ डेफिनेटली ऑन EQ एज वेल, दैट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ रीडिंग सामने वाले के इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग देम एंड taking your decisions and have that empathy towards that. ठीक है? And of course it is very vast in itself. So what I've always believed that IQ gets you a job, EQ gets you promoted. अच्छा. Because then you understand your mates. You become people's person. Right. अगर आप अपनी विसिनिटी में या अपने कम्युनिकेशन में लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो और एक कॉर्नर पे बैठ के कंप्यूटर पे बस काम कर रहे हो और डिलीवर कर रहे हो, सो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि वो मल्टी फेसेटेड होगा, वो प्रमोट होगा. सो ये हो गया जॉब की बात. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो EQ बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ. IQ से आप या अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पर ना वो कन्विक्शन बहुत होता है एंटरप्रेन्योर्स में कि ये प्रॉब्लम तो मुझे सॉल्व करनी ही है. सो दैट IQ पार्ट इज डन विद दैट. EQ नहीं अगर होगा ना, वो टीम्स कैसे लेकर आएंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे. They need to have that strong EQ, that emotional quotient. So how do we develop that? There are a lot of games that works upon their creativity, that work of creativity as in not as creative सोचना only, creativity as in about the emotional intelligence as well. So even a small game like a dumb charades, ठीक है ना, आप उसमें कितना deep सोचते हो कि मुझे कैसे समझाना है. Right? So there are a lot of games, dumb charades, scarf dumb charades. Then, so there are different games. So we can think of like scarf dumb charades. उसमें तुम्हें imagine भी करना है कि कैसे present करना है character, और वो sensory object के साथ करना है. And then there's a level 2 in that जहाँ पे feelings को express करना है. So there's a feeling and a character as well. So ये बेसिकली बच्चों को ना नेम करना सिखाता है इमोशन को. ठीक है? सो देयर इज अनदर गेम विच वी कैन प्ले एज अ पेरेंट, लाइक नेम द इमोशन. एंड यू कैन इवन प्ले इमोशंस जेंगा. देयर कम्स दैट वो जेंगा का एक वो भी आता है, इमोशंस जेंगा वाला. अच्छा. यस. सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम्स जो आप बच्चों के साथ ऐसे खेल सकते हो वेयर दे फर्स्ट ऑफ ऑल नो हाउ टू नेम द इमोशन. ओके. अगर आपका बच्चा नेम द इमोशन करने लग गया कि आई एम फीलिंग anxious, I'm feeling upset. They know the difference between both of these. It is very likely कि वो बच्चा come in state of depression और उसमें जाएगा. Because 50% of your mental cloud or even your this depression के जो चीज़ की तरफ जा रहा होता है gets reduced अगर आप emotion को name कर देते हो. So it is very important we teach them right at good age, and then seek and discuss about it, embrace it. So I always play this game. अगर ये लंबा हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ लो बीच में. नहीं, ठीक है, you can. ठीक है. So I always play this game with my kid, जिसमें if she comes to me and complains, so we say it, name it, feel it, and be okay with it. Okay. Yeah. So name that feeling कि आपको क्या go through कर रहे हो. Second, feel it, embrace it. उसको accept करो कि it's okay to be angry, it's okay to feel upset, it's okay to feel to envy about. So next, अब उसको कैसे deal करना है. Do you want to remain in a state of envy or jealousy or upset, or are the things in your control? Then these are 2 steps. Once they name it and they deal with it, second is the circle of control. क्या वो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में आता है. सो माई किड्स दे लव ड्राइंग ऑन वाइट बोर्ड्स. दे ड्रॉ देयर सर्कल ऑन देयर ओन एंड दे टॉक टू देम सेल्स बाय देम सेल्स. इवन दे मेक मी सिट कि देखो. देन दे सेड कि मम्मा आज उसने मुझे अपनी चीज़ें शेयर नहीं की, बट इट वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, इट वॉज हर डिसीजन एंड दैट कैन नॉट डिफाइन मी. दे शुड नो दैट. इट डजंट मीन कि तुम में कोई गलती है. मे बी अगर तुम्हें लग रहा है कि वो आपसे अपसेट है या मुझसे अपसेट है, आई विल टॉक टू हर. सो शी वाज गिविंग हर ओन वेज टू डील विद इट, स्टेप्स व्हिच शी वाज टेकिंग केयर ऑफ. ना यूजुअली बच्चे बस कंप्लेन करते हैं, रोते हैं, एंड इफ दे क्रिएट देयर ओन इमेजिनरी थिंग आउट ऑफ इट. कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए बच्चों के साथ? एज अर्ली एज पॉसिबल. आई स्टार्टेड व्हेन शी वाज 7 because that was the age she lost her grandma, and she has been going through a lot because she was very attached to her. And I'd seen a lot of changes because she stopped going to school altogether. वो स्कूल के नाम से उसका पेट दर्द होने शुरू हो गया था, and it went to that level कि वो actually में पेन हो रहा था. She wasn't faking it. So then
Then I started working in all that directions with her, and then she only takes the marker, draws everything, and tells her frame of mind ki what I'm feeling right now. And through that activity, we realized the root cause was mama. She wasn't there. Dadi wasn't there. Right. So we didn't realize it for 6 months. We kept showing to different doctors. Oh, how interesting is this? So इतने डॉक्टर्स को दिखाया वो ठीक ही नहीं हो रहा, you know. And 2 months बीच में ऐसा था, she didn't go to school. वो स्कूल जाती थी, फ़ोन आ जाता, she is crying badly with her stomach ache, आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाओ. I said कितने डॉक्टर्स को दिखाओ. So then with these activities we went deeper and we realized कि she was missing her companion to an extent कि उसकी वो health पर आ रहा था. Right. Yeah. So as you were talking about games, Yeah. so what are the games which we as a family should play at least once a week with our children? I think ये हर फैमिली का पर्सनल रहता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट में वो किस में मज़ा आ रहा है. एंड आई पर्सनली फील बैठ कर जो बोर्ड गेम्स होती है अच्छा. do play. We played Monopoly, we have played business board games, we played even railway station that railways games as well, that tells about all the circuits of railways in India, entire Achha. India. So by chance with that, you know, then we played about the renting as well. And currently our favorite is Sea Crush, and Sea Crush is basically working upon their attention span and focus. Okay. That is on quick thinking. So हम वो lay down करते हैं 8 mats and we have to quickly find where is exactly that picture वाला thing is, and we have अच्छा. to press the buzzer. And we go crazy because में fun moments इतने होते हैं, कोई buzzer खींच के अपनी तरफ कर रहा है, intelligently धीरे धीरे अपने पास लेकर जा रहा है. So that's the fun moments, you know. थोड़ी सी cheating हो जाती है, थोड़ा सा मस्ती होता है. And I think when we grow up and with that is I've realized आज की डेट में भी आपसे पूछो ना आपके बचपन का आपको क्या याद है, आप 1 सेकंड के लिए सोचो. Right. So what would that answer be? I think maybe some holiday I stayed with my parents, है ना? See? And Maybe with your friends, जो आपके Yeah, बचपन के yeah. friends हैं, आप उनके साथ खेलते थे. That's True. the best memory thing. Absolutely. Right? और अगर हम अपने बच्चों को ऐसी हर रोज़ different चीज़ें या weekly ऐसा एक moment दे रहे हैं, can you imagine what good we are doing to them? उनका security, उनका safe place बढ़ता है, उनकी insecurities कम होती हैं. और बाय प्रोडक्ट में जो भी गेम है वो अगर किसी टॉपिक पर है, मोनोपोली है तो वो नेगोशिएशन सीख रहे हैं, सी क्रश है तो उनका अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है, और अगर बैटलशिप है तो उनकी स्ट्रैटेजी इंक्रीज हो रही है. आप सोचो उनकी स्किल्स एनहांस हो रही है, एंड बाय प्रोडक्ट में दे आर मेकिंग मेमोरीज. true. So So true. I really don't understand why don't people really invest their time in Time playing? आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है ना? जो एक एक्सक्यूज दिया जाता है शायद. Okay, then make such a safe space जहाँ पे उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं, खुद नहीं खेल सकते, उनके फ्रेंड्स को इनवाइट तो कर सकते हैं. आई ऑलवेज बिलीव देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी सिचुएशन, एंड इफ आई एम कंप्लेनिंग इट इज़ माई फॉल्ट. व्हेन आई से कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा, आई ऑलवेज थिंक कि देयर कुड बी अनदर वे एज वेल टू डील विद इट. Right. राइट. पर आजकल बच्चों का ना एक तो इतनी सारी क्लासेस होती हैं, right? End of the day when the child comes back home, then parents are exhausted, the child is exhausted, and the best thing probably everyone feels is कि या तो Yeah. टीवी के सामने बैठ जाओ Yes. for few minutes या मोबाइल्स ले लो अपने. Yeah. So क्या करें बताएं? That's what you said. No, just a week. एक संडे रख लो. Once a week Once रख a लो, है week ना? is good. पर एक फैमिली ट्रेडिशन रखो. रखना चाहिए, हम सबको रखना चाहिए. एंड जो बाकी डेज है ना, क्योंकि सैटरडेज बहुत जगह पे इंडिया के स्कूल्स में भी नॉन वर्किंग होते हैं, ऑफ Yes. होते हैं, राइट? तो उनमें आप नहीं दे सकते हो तो उनके फ्रेंड्स को घर बुला लो, या इनको कोई प्ले डेट अरेंज करवा दो, राइट? जस्ट मे बी 1 फ्रेंड सो दैट दे कैन प्ले अ प्लेयर ऑफ 2 वाला गेम्स. Right. तो लाइक जहाँ पे सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, दिस अ सेफ प्लेस जहाँ पे बच्चा खेल सकता है, गो सेंड देम आउटडोर्स, उनको भेजो. अब इतनी अगर गर्मी है, धूप है, जिस तरह से वेदर है, तो ये गेम्स रियली इम्पोर्टेंट है. They work. यस. सो जस्ट अ पर्सनल एग्जाम्पल, सो मैं अपने कजन्स वाला गेट टुगेदर था जस्ट डे बिफोर येस्टरडे, एंड वी वर मीटिंग आफ्टर 18 years. Okay. So they were इतना in my marriage, छोटे छोटे स्कूल में थे, so they'd grown up now, they are business owners, they're working, jobs कर रहे हैं. जब वो grow up कर रहे हैं, now we don't know that much each other, so we thought to meet each other. अब हम क्या करें, हमारे पास कुछ common है ही नहीं है डिस्कशन को. हम सबने कहा कि यार चलो डम शराड्स खेलते हैं. Okay.
एंड देयर वाज वन माय भाभी हु वाज लाइक बिल्ली मौसी बोल रहे थे हम उसको, वो बहुत वियर्डेस्ट ऑफ वियर्ड मूवीज निकाल कर दे रही थी हम सबको. अच्छा. एंड वी वर नॉट प्ले, वी वर ऑल ट्राइंग टू, वन वाज एक्टिंग. वी हैड time of our lives. I think I'll remember that day till the end of my life because Right. we had a blast. और We कितना अच्छा could- आइडिया ना, गॉसिप करने से अच्छा है Exactly. एक गेम खेल रहे हो एंड देन वो ऑफ कोर्स वो मेमोरी रह रही है एंड एक अच्छी वाइब आ रही है उस Right. पूरी इवनिंग में, है ना. Exactly. मेरा फर्स्ट कजन है, हम एक ही घर में रहे हैं एंड वो 16 years का गैप है. मैं उससे क्या बातें करूंगी, कुछ टाइम तक कुछ कहेगा कि अब बड़ी दीदी ना मुझे से इंटरव्यू ले रही है, कितनी देर कर लोगे ना, क्वेश्चन ही पूछूंगी मैं उससे क्या Right, कर रहे हो, ये सब right, क्या चल रहा है. बट देन while playing the game we as a family had amazing time. So बॉन्डिंग इज डिफरेंट. exactly. आजकल एआई का इतना ट्रेंड हो गया है ना, अगर एआई इतनी ही पावरफुल है तो हम बच्चों को पढ़ाए क्यों रहे हैं? Have you ever thought about it? AI पावरफुल हो गई है पर AI को मैनेज कैसे करना है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा. हाउ टू यूज दोज AI टूल्स, उसको किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग कैसे करने, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, वो स्टडी करना ही पड़ेगा. राइट. सो उस पर्टिकुलर जितने नए टूल्स है उसको बेस्ट यूज में कैसा लाना है उसको स्टडी करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से द फर्स्ट स्किल्स, आई ऑलवेज प्रमोट दीज 5 skills that AI can never replace. The first is understanding AI, not just AI, any evolving technology. जब कोडिंग आया था तो कोडिंग सीख रहे हो, जब AI आया है तो AI टूल्स यूज़ करना सीख रहे हो, राइट. सेकेंडली ऑफ कोर्स आई थिंक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. ठीक है, ये AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है. थर्ड इज हैविंग कॉन्फिडेंस एंड गुड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये AI Right. नहीं रिप्लेस कर सकता. फोर्थ इज हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग ability to have those know those techniques कि मेरा फोकस किससे इम्प्रूव हो सकता है, मेरा मेमोरी किससे इम्प्रूव हो सकता है. आपका बच्चे के स्कूल से मैसेज आ जाएगा कि इसको ये चैप्टर लर्न नहीं है, इसके मार्क्स कम है, बट स्कूल्स ये नहीं सिखा रहे हैं कि मेमोरी कैसे इन्हांस हो सकती है, इस टॉपिक को कैसे बेटर वे से लर्न कर सकते हैं, राइट. तो आई थिंक ये टेक्निक्स बच्चों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स जो एम्बिशन होना, एक स्ट्रिक्ट रूटीन होना, स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगी, डिसिप्लिन होना, स्ट्रिक्ट रूटीन को काट देंगे. सो एक परसिस्टेंट अच्छी डिसिप्लिन होना, ये सारी चीज़ें AI नहीं रिप्लेस कर पाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं रिप्लेस कर पाएगा. सो येस, AI आपको साइंस के आंसर्स, SST के आंसर्स लर्न करना वो शायद बाईपास कर सकते हो, बट जो मैथ्स है ना, मैथ्स में आई फील एवरी किड शुड, अगर मैथमेटिक बेंड है उसको डीप करना चाहिए, क्योंकि AI सॉल्यूशंस कैसे बने हैं, वो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस ही तो है. तो AI हमें कब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपने बच्चों को? इज देयर सम स्पेसिफिक एज जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए? See, my daughter is 8, but I think I really want, when she was 7, I wanted her to introduce AI tools. उसने इंटरेस्ट नहीं शो किया, that's fine, but मेरे बेटे ने बहुत इंटरेस्ट शो किया, तो वो बहुत सारे टूल यूज़ करता है. सो नाउ इवन शी हैज स्टार्टेड टू भी, उसका होमवर्क में हॉलीडेज होमवर्क में कंडीशन ये है कि मम्मा किसी भी हॉलीडेज होमवर्क में हेल्प नहीं करेगी. ओके. एज इन मम्मा नहीं करेगी, वो जहाँ आप रुकोगे वो भी 2-3 ट्रायल्स के बाद वहाँ आई जंप इन. और बहुत सारे हॉलीडेज होमवर्क में कितना जगह पे AI यूज़ करना है. सो बट शी इज़ हेल बेंट, मम्मा AI यूज़ करूँगी तो हाउ विल आई यूज़ माई ब्रेन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई ऑन माई ओन. When you step in, you can use AI. She gave me that answer Okay, though. okay, But nice. then AI को introduce करना 8 years of age में is not bad. It's good because And what tools should we start initially for See, kids? ChatGPT का जो exposure है ना वो थोड़ा सा risky भी है, ठीक है. But then ChatGPT की history होती है and हम उसको अपने अंडर देख सकते हैं. So छोटी छोटी चीज़ों पे we can हर टाइम नहीं उनको दे. ChatGPT ना इज़ लाइक यूट्यूब, तो उसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में देना है. तो देन अदर वे वी कुड स्टार्ट विद स्क्रैच और MIT ऐप इन्वेंटर, जहाँ पर वो थोड़ा सा कोड करके अपनी गेम्स बना रहे हैं, क्योंकि उसमें पर्सनल डिस्कशंस नहीं है ना, आंसर्स नहीं है. सो आई ऑलवेज थिंक कि बच्चों को स्क्रैच और MIT ऐप इन्वेंटर के साथ शुरू करना चाहिए. Okay. एंड ChatGPT has become so need of the hour. वो तो गूगल के जैसे सीख ही जाएंगे. Right. And working on the prompts and all. And now अब AI की बहुत सारी ना वर्कशॉप्स शुरू हो चुके हैं.
So now this summers I am vouching for that because we have also come up with AI workshops for kids that is 10 plus years old. For my 8-year-old, they sit with my team and they learn AI. Yes. Okay, nice. So what is the biggest parenting mistake which you think parents are making these days? Though they are taking care of their children, spending a lot of money on them, but what is it that they are actually missing I think, out? spending money is again in itself the answer rather than spending time, and love is more important. The biggest mistake parents are doing, spending money भी इतना शायद मुश्किल नहीं हो, मतलब sorry, spending money भी इतना खराब नहीं मानूंगी मैं, but always being there to help them and always jumping to solve their problems. Helicopter parenting. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो हो गया ना, पीछे पीछे है. हाँ. एक है अगर बच्चे से कुछ हो नहीं रहा है, हाँ, तो उसको मैं टाइम कर भी देती देना हूँ. खुद सॉल्व करने का. मैं कर देती हूँ. ऐसे करो, आप ये छोड़ दो, ये मम्मा ही देख लेगी, आप फटाफट रेडी हो जाओ. क्यों? आप मतलब और बच्चे ने अगर अपने चेंज किया है तो कपड़े वहीं पड़े हैं, वो तो मम्मा नहीं उठाने हैं. You know, क्यों? So it's like always being there for them, and it really works, and I think they become sharper, smarter. And तभी कितने पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों को हॉस्टल ही भेज दो. हाँ. क्योंकि but I personally can't send my kids to hostels, but it's personal, right? Yeah. But then but at least what I can do is not always being there. Go. I feel blessed कि I'm working. मेरे पास naturally time नहीं है. So I always tell them, give them the instructions, ये कर लो, ये आपको करना चाहिए. But the good part, what we do is I ask them to make their own routines, and I tell them you have to decide आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है. You have to maintain your room, you have to maintain your routine. So they write their own routines and come to me rather than me dictating to them. So I think always being there to help them is not right. Let them think and let them Yes, get their because way. वो बच्चा कभी भी फेलुअर्स और कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि वो बच्चे को हर चीज़ प्लेटर में मिल जाती है. मम्मा शूज़ टाई कर दो, मम्मा कपड़े निकाल दो, मम्मा मेरे को यहाँ जाना है, तो मम्मा खड़ी होती है बैग पैक करके, फ्रूट्स लेकर, बॉटल लेकर. बच्चा अपने आप भी बॉटल भर सकता है. सो माई डॉटर डज इट फॉर herself. She knows mama can't come. आजकल ये बच्चों में एंजाइटी बहुत है, एंशियसनेस बहुत ज़्यादा है, पेशेंस लेवल नहीं है. वाई सो? वाई इज दिस? I think overstimulation, बहुत कुछ है, और they're stimulated with so much of that, especially the digital stimulation. And of course there is, हमारे टाइम भी होता था comparison, but अब बच्चों के पास पेरेंट्स के अलावा भी comparison है. Instagram is always there. उन्होंने नई कार ले ली, she's wearing that brand. Or by default, just by looking into a reel or somebody's status, they are, deciding their own worth. So they're making the emotional comparison which goes in their own mind. हमारे टाइम बाहर से क्रिएट होता था, देख उसके इतने नंबर आ गए. You remember parents saying that? Yes. But then हमारे पास ये कुछ नहीं था कि जहाँ हम खुद भी सारा दिन कंपैरिजन कर रहे हैं. यहाँ अब बच्चे खुद सारा टाइम कंपैरिजन्स करते हैं. वो ये कर रहा है, उसको स्पेशली इन टीनेजर्स, और एंग्जाइटी आप ज़्यादा टीनेजर्स में देखोगे, राइट? उसको वो इस कार में आ रहा है, शी इज़ गेटिंग दैट पॉकेट मनी, वो इस कॉन्सर्ट में जा रही है, आई कांट, सो ये वाला जो इमोशनल बैगेज वो खुद क्रिएट करते हैं ना, दे मेकिंग देम मोर एंग्शियस एंड मोर वल्नरेबल. So how can we help? एक ना आदत जो हम बचपन से बना सकते हैं, दैट इज़ द ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना. आई मीन वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग और रात को सोते समय विदाउट अ मिस, एंड स्पेशली ग्रैटिट्यूड फॉर द वर्स्ट मोमेंट ऑफ द डे. Okay. आज अगर कुछ बहुत बुरा हुआ ना, तो रात को सोते हुए थैंक यू, मतलब जो भी आप मानते हो, भगवान जी थैंक यू, ऑलमाइटी, कि आपने मेरे साथ किया, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, और आपने बहुत अच्छा सोच के ही मेरे लिए किया, ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाला टाइम की लेकर एक्सेप्टेंस आए. एंड व्हेन यू टर्न इनटू ग्रैटिट्यूड, वो बेसिकली प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं की ना अब तो. आप सोचो वो कहाँ, वो कहते थे हाय ये हो गया, आप कह रहे हैं थैंक यू ये हो गया, प्रॉब्लम फिनिश.
राइट सो पॉजिटिव वे में हमने ले लिया. एग्जैक्टली. सो अगर हम ग्रैटिट्यूड बच्चों को अभी से करवाएंगे ना, इन वट एवर दे हैव, दे विल बी मोर सिक्योर, उनके कंपेरिजन्स भी कम होंगे. सेकेंड, ऑलवेज डू दिस इमोशनल चेक इन थिंग विद देम. इन वट एवर check in time. ठीक है, what are you feeling right now? Let's play a game. थोड़ी देर बाद, yeah, I'm feeling like that. Are you thinking? I'm overthinking. Yeah, तो वहीं पर overthinking भी कम होता है. ठीक है, I think I'm not feeling so good. But वो so good को can we define more? है ना, what is exactly that calling? So there is emotional check-in discussions है ना, वो बहुत important है. अच्छा. क्योंकि they would actually help kids analyze their own thoughts, their own feelings. और जब वो पता चलता है कि once they're aware of their own feelings, I told you, half of the thing is already done. Problem is solved, right? Yeah. So tell me, you as a parent, if you have 30 minutes with your child every single day, so what would you do which you think would make a difference in their life? Yeah. सबसे पहला वी डू, जो हम सबको अच्छा लगता है, वी डू दिस क्रेजी डांस थिंग. सो वी स्विच ऑन द म्यूजिक एंड वी डू समथिंग वेरी क्रेजी डांस विच इज़ वेरी फनी, विच यू रियली कांट डू इन with others, in public. So that, you know, that is our moment, because we laugh crazily. So we have that crazy moment wala laugh time. Second is then we in movement therapy call it cooling down. That is when we sit and just deep breathe and sway. Okay. You take deep breath and just sway. ठीक है. Third, once you're settled, deep breathe and your gratitude. I personally feel affirmation मैं बच्चों के साथ बोलती हूँ. I'm strong, I'm wealthy, I'm healthy, and I'm, you know, that is, they're good affirmations and we should. तो affirmations बोलकर, but gratitude I rate even above than affirmations. अच्छा. Yes. क्योंकि thank you that I am strong. You are always in that gratitude that कि मैं strength भी मुझे मिल रही है. You know. So we always practice gratitude. And in the morning, one thing which we always do is facing the sun. That is जब स्कूल जाने से पहले. आजकल vacations है, आजकल नहीं हो पा रहा है, but स्कूल जाने से पहले, before bus comes, we face the sun, we deep breathe and thank you, because that is that source of energy which is, you know, giving life to us on earth. They realize this thing. Nice, so nice. Yeah. So ये कुछ चीज़ें हैं. मे बी हम क्रेजी डांस एवरी डे नहीं करते, बट हम ग्रैटिट्यूड हमेशा करते हैं. तो मतलब मे बी हम इस क्रेजी डांस एक्टिविटी की जगह हम कभी कभी ये गेम्स खेल रहे हैं. So tell me this, जैसे कई बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, राइट, एग्रेसिव होते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड दे then how do you tackle those kind of children? You can't just tell them कि आप gratitude practice करो, या आप calm down हो जाओ, deep breathings लो. You can't do that with them. No, there is situation for it. See, ये सारी activities तब होती है जब बच्चा बिल्कुल chill mood में, वो relaxed है, उस time पे वो और किसी इमोशनल चीज़ से ओवरवेल्म नहीं है. ओवरवेल्म चाइल्ड ये सब चीज़ें नहीं कर सकता. वो कैसे समझेगा डीप ब्रीथ और ये सब, उससे कुछ नहीं होगा उस टाइम. यू जस्ट नीड टू गिव अ टाइट हग एट दैट टाइम टू सूट दैट बच्चा. स्पेशली अगर वो बहुत गुस्से में अग्रेसिव है, तो अग्रेसिव बच्चे को अगर ये बोलोगे कि आप बहुत गुस्से में क्यों हो, क्या है आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो और ज़्यादा होगा. वाई डू वी नीड टू लेबलिंग और इमोशन चेक इन बहुत कंट्रास्टिंगली डिफरेंट है. Okay. वो खुद से जब लेबल कर रहा है कि येस आई एम एग्रेसिव, येस आई एम एंग्री, वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहा है, और हम कह रहे हैं वो लेबल कर रहे हैं और उसको और एग्रेसिव बना रहे हैं. there's a difference. We are not supposed to do that. ठीक है ना. उस टाइम शायद it varies from person, kid to kid. In that case, I would say maybe a tight hug. That's works for my kids. ठीक है. It works maybe different for your kids. So अगर मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, स्पेशली उसका जब बैड मैच होता है ना, वो बहुत ही अजीब से उसमें होता है, तो आई जस्ट होल्ड हिज हैंड, क्योंकि वो हग भी नहीं करता है. तो बिल्कुल मेरे को बुलाओ मत मम्मा प्लीज़. राइट. So then I don't talk to him for a good 10 minutes कि you take your time. चुप रहते हैं. मैं फिर हल्का सा म्यूज़िक लगा के I'm just on my own, क्योंकि मुझे बहुत पोक करते हैं ना, बार बार उसको प्रोसेस ही नहीं करने दे रहे बेचारे को अपनी इमोशंस. So what you've asked is not related to that half an hour वाला activity. It is something
situational which has to be dealt in that particular manner. All right. So if अगर बच्चा एग्रेसिव है तो पहले तो उसको अग्रेशन सेट करना पड़ेगा. अगर बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव है तो उसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करवाना पड़ेगा. और वो जब थक रहा है और यार है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हाइपर स्पोर्ट्स करने से और एक्टिव हो जाते हैं, उनकी बॉडी और एक्टिव चले जाती है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्कशन बिकॉज वो शायद मेरा फोटे नहीं है. आई एम नॉट ट्रेन्ड टू स्पीक ऑन एवरी स्पेक्ट्रम. Right. I basically make learning very fun. So I would not touch those things, but then that's what I do with my kids for sure. कि जब वो उस particular emotion में पहले तो उनको थोड़ा time दे दो to process it. बहुत ज़्यादा poke नहीं करना है. And how do you improve the focus of the child? Tell me, what are the activities which we as parents should do जिससे हम अपने बच्चों का focus increase कर सकें किसी भी चीज़ में, and not only studies, but then actually they are giving good 10-15 minutes to that particular thing. True. How can we do that? So there are 3 things I would suggest. 1, आप सबसे पहले उसके साथ ना आई एक्सरसाइजेज होती हैं फोकस की, पेंसिल पुशअप्स होते हैं, आई एक्सरसाइजेज कर रहे हो. सो यू हैव टू मेक M with the I, you have to make W with the I, then you have to do pencil focus push-ups. तो वो एक तो आईज़ को बहुत स्ट्रेंथ देता है, प्लस वो थोड़ा काम डाउन करता है. देन वी डू, दिस इज़ नकल्स, वी डू नकल टैपिंग ऑन द हेड. अच्छा. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फॉर 30 seconds. हल्का हल्का सा. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. ठीक है, ये हो गई फिजिकल. आई एम कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज़ अगर बच्चे का पढ़ाई के टाइम फोकस नहीं है तो देर आर सम हर्ड्स, म्यूज़िकल हर्ड्स जो आप लिखोगे डीप फोकस, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. तो वो सिर्फ 5 से 10 मिनट भी नहीं, जस्ट फॉर 5 minutes मेक देम लिसन टू दोज वाइब्रेशंस. एंड आई डोंट नो, हर रिलीजन का डिफरेंट होता है, बट देर आर फ्यू सच चैंट्स जो बच्चों को काम डाउन ज़्यादा करते हैं और उनका फोकस भी बेटर करते हैं. एंड नाउ कमिंग ऑन टू माई फोटे, दैट इज़ ऑफ कोर्स गेम्स. सो देर आर गेम्स दैट इंक्रीज फोकस. सो C-Crush is designed in a way जो उनका फोकस बहुत बेटर करता है. अच्छा. Yeah, because I told you have to really sit, and we realized with the kids, जब वो बच्चे C-Crush खेल रहे हैं, half an hour हो गए, 40 minutes हो गए, 1 hour तक हो गए, वो उठ ही नहीं रहे हैं. They're so mentally into it, which is very unlikely and very less seen in other games. So they are really engrossed कि जब तक उनका ट्रैक ख़त्म नहीं होता, they are finding their cards and all everything. So that increases their focus. क्योंकि आप ये मत देखो कि बच्चा गेम के टाइम फोकस्ड है, बट ये देखो कि बच्चे का ब्रेन में वो पोर्शन एक्टिवेट हो रहा है जो उसका फोकस बेटर कर रहा है. राइट. सो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आपको बाकी चीज़ों में भी दिखेंगे. राइट. सो हैव यू थॉट कि बच्चा कई बार अपने इंटरेस्ट की बुक आराम से पढ़ लेता है, स्कूल की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाता है. राइट. तो वो स्कूल की टेक्स्ट बुक इंटरेस्टिंग हम शायद अभी नहीं बना पाएंगे, पर हम उसको डिस्कशन में लाकर ज़रूर इंटरेस्टिंग बना देते हैं. आई नो मेरा बच्चा पंजाबी पढ़ के खुश नहीं है, तो पंजाबी इज़ समथिंग आई ऑलवेज टेक ओवर, और उस पर्टिकुलर हम चैप्टर को इनैक्ट करते हैं, बातें करते हैं. और मेरी भी पंजाबी थोड़ी सी बीच में ऐसे ही है, तो फिर वो भी मेरा मजाक उड़ाता है उसका, तो उसको फ़न बनाकर हमने इंटरेस्टिंग बना दिया. ठीक है ना. अब उस साइंस बहुत उसको ऑलरेडी एल्योर करता है, वो साइंस मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. सो इट इज़ ऑलवेज लाइक इंटरेस्ट भी मैटर करता है, बट फोकस भी इम्प्रूव होता है. सो रिलेटेड क्वेश्चन, बच्चे स्टडी करते हैं, होमवर्क करते हैं, बट उसके बाद उनसे फिर से पूछा जाए वो चीज़ तो कई बच्चे नहीं याद रख पाते. सो व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट पेरेंट्स कैन डू? देयर इज़ अ कर्व कॉल्ड इबन-गॉस फॉरगेटिंग कर्व, व्हिच सेज कि हम जो भी पढ़ते हैं 70% ऑफ दैट 24 आवर्स में भूल जाता है. अच्छा. यस. क्योंकि हम बस एक बार उसको रीड कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम लर्न भी कर रहे हैं, कुछ हर एक का डिफरेंट है, कोई हिल के लर्न कर रहा होता है, बट वो वाला पोर्शन स्पेशली आपको 24 आवर्स के बाद फॉरगेट हो जाता है. ये रिसर्च कहती है. राइट. क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ है, आपने समझा नहीं है, उसमें डीप नहीं जाते हैं बच्चे, सिर्फ रीड करते हैं फॉर सेक ऑफ लर्निंग, और वो भूल जाता है. So there are few methods which really can improve this thing. Number 1 is teach back method. Okay. आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उसके बाद इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को करो कि आप टीचर हो और आप किसी को समझा रहे हो.
अब वो कॉन्सेप्ट को पूरी की तरह उसने एब्जॉर्ब कर लिया बच्चे ने, क्योंकि उसको वो समझाना है. सो दैट्स कॉल्ड टीच बैक मेथड. एंड अब आई अंडरस्टैंड स्पेशली बड़ी क्लासेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही यू हैव टू लर्न इट ओनली. ठीक है ना. तो उसमें आई वुड से एक्टिव रिकॉल, दैट इज़ 147 एक्टिव रिकॉल. दैट सेज पहले दिन आपने लर्न किया, उसको डे 1 नेक्स्ट डे एक बार एक्टिव रिकॉल करो कि मैंने ये किया. डे 4 पे दोबारा से उसको रिकॉल करो कि ये किया. और डे 7 पे एक बारी फिर से. एंड देन दैट स्टेज यू फॉर एवर. ओके. I mean, you have read it for once and you think it's done, that is for sure वो भूलेगा. ठीक है. You have to revise it again Revise and it, again. yes. Right. And 147 is proven method Okay. that works. कि, Interesting. Yeah, that stays. अच्छा. Yeah, so that's one thing. And अगर बच्चे छोटे स्पेशली जैसे 10 years तक की एज के हैं, तब उनके कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन वाले होते हैं. उसमें ऑलवेज से प्ले द गेम्स. I've talked about it in my TED talk as well, about our 8 multiple intelligences जो हमारे पूरे ब्रेन को डिवाइड करती है. मतलब इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, ये सारी. तो आप कोई भी टॉपिक लेते हो ना, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर वो किनेस्थेटिक है, तो लेट्स से मैथ्स का ही टॉपिक है. ठीक है. प्राइम नंबर्स हैं या फिर फ्रैक्शंस हैं, तो उसको खेल में कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स हैं. तुमने जहाँ पे प्राइम नंबर होगा अपने सिंगल लेग कर लेनी है, जहाँ पर इवन नंबर होगा वहाँ डबल लेग्स कर लेनी है. ठीक है. सो समथिंग लाइक you made a game out of it. Making it interesting है ना. Yes. That stays for them forever. आपको वो टॉपिक ही नहीं है, मैंने आज पढ़ा दिया, वो भूल जाता है अगले दिन, जैसे हम बचपन में करते थे. So, कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल्स है. हाँ. ठीक है. वो सबसे सिखाने मुश्किल होते हैं. What if they're turned into games? So like every multiple of 3 आपको क्लिक करना है, every multiple of 12 आपको इस तरह से स्टेप करना है. Right. So एक तो बच्चों को खेल के मज़ा बहुत आता है, and they of course they learn it better, and that stays with them. Nice. Asa, tell me, like from your perspective, how ideally a parent should have the entire day planned with the child, which helps for a good bonding, Yeah. and of course for making the child ready for tomorrow. Yeah. Which are the activities which you think every single day Yeah. a parent should do with children these days? Because I think parents now need a flow chart. Yes. True that. कि ये हमें करना चाहिए, because everybody is so busy, so occupied. तो अगर मैं आपसे ऐसे फ्लो चार्ट मांगूं, क्या होना चाहिए? What would it be? So see, if you're asking about this, कौन सी एक्टिविटीज़ कब करनी चाहिए, that yes, एक दिन में मतलब हमें ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए अपने बच्चों के साथ. Whatever said and done, what would those activities be? Okay. So apart from this skill based activities जो पेरेंट्स अपने आप डिसाइड करेंगे. ठीक है. So start of the day, 3 moments of the day वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और जहाँ पेरेंट्स होते ही होते हैं. स्कूल छोड़ने से पहले, क्योंकि पेरेंट्स तैयार कर रहे हैं बच्चों को. जब वो स्कूल से आता है उसको लेने जाते हैं, चाहे वो बस स्पॉट पे है, चाहे घर आ रहे हैं या कार में अपने आप पहुँच रहे हैं, पेरेंट्स जनरली मेक श्योर कि वो होते हैं तब घर. ठीक है. इट कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. ठीक है ना. कई बार नहीं भी होते हैं. रात को सोने के टाइम भी पेरेंट्स होते हैं. ये पर्टिकुलर टाइमिंग पे तो आप नहीं कह सकते ना कि हम बिजी हैं. Right. तो बाकी डे जहाँ पर भी है, तो पहले ये 3 टाइम पे डिस्कस करते हैं. जब मॉर्निंग है, आई बिन टेलिंग यू कि वो छोटी छोटी सी जो भी रिचुअल है आपके घर का, आपके अपने घर के कल्चर, अपने रिलीजन से रिलेटेड, वो डेफिनेटली करना चाहिए. सो वी डू टैपिंग. वी स्टार्ट विद द टैपिंग, वी डू डीप ब्रीदिंग, एंड आई टोल्ड यू कि हम सन ब्रीदिंग भी करते हैं. Right. ठीक है. सो कुछ रिचुअल्स हैं और ग्रैटिट्यूड हम करते ही करते हैं. Right. जब स्कूल से आते हैं उस टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो थका हुआ आ रहा है. वो पूरी की पूरा जो एब्जॉर्ब कर चुका है, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाए और वो करके आ रहा है. अब उसको और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए. और हम कह रहे हैं कि अच्छा आज का पहले, आज तूने क्या करना है, यहाँ भी जाना है, ऐसे भी करना है, तो पहले ही शुरू हो जाते हैं. नो, प्लीज डोंट डू दैट. या इट इज़ दैट टाइम उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है. सो यहाँ पर मेरे बच्चों का मैंने स्क्रीन टाइम इस टाइम पे रखा हुआ है, क्योंकि स्कूल में तो स्क्रीन्स नहीं होती ना. तो इफ़ दे कम फ्रॉम होम और दे वांट टू रिलैक्स,
थोड़ा रूम रेडी है, थोड़ा सा चिल है, दे वांट टू चिल, सो देन दे कम फॉर लंच. अच्छा. एंड लंच पे देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग कैसा था स्कूल, आज क्या हुआ, वो वाला टेस्ट कैसा गया, या फिर कौन सा स्पोर्ट्स में क्या किसने कैसा किया. देन वी टॉक. ठीक है, बिकॉज कनेक्शन और डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड जो रात वाला टाइम है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज अब बच्चा इसके बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने वाला है. और अगर आप बच्चों के ये कह के सुला रहे हो कि जल्दी सो जा, लेट हो जाएंगे, फिर तो सुबह उठता नहीं है, ये वाला बैग पैक कर लिया था, उस टेस्ट की तैयारी हो गई थी, आप सोचो वो इसी थॉट से सोएगा. तो वो एंक्शियस होगा ना. राइट. सो वाई टू डिस्कस ऑल दैट. अब जब सो रहा है, ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट योर किड. यू डोंट नो हाउ प्राउड आई एम ऑफ यू. आपने इतनी सारी चीज़ों को ट्राई किया. ओके, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ. नेवर एवर टेल योर किड यू आर सो स्मार्ट, वाओ यू आर ग्रेट, यू नो. राइट. ऑलवेज अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. नेवर गिव एडजेक्टिव टू योर किड, चाहे वो अच्छा ही क्यों नहीं है. ठीक है, आई नो यू आर सो काइंड, never give that adjective. I really like the way you help that person. I really like the way you're putting in efforts. मैं बहुत खुश हूँ आपने तैयारी करी, आपने बैठ के इतना कुछ सोचा. आई एम सो हैप्पी आपने बैठ के पापा के लिए सोचा और ऐसे उनके हेल्प की. Always appreciate what they did rather than giving them an adjective. Right. It is a proven research. All those kids who have been always given an adjective or labeled about given some quality are likely to see more failures. Okay. Yes, because अगर मैं आपको बोल दूँ, oh Anita, you're so smart and आपको you know you look so good, and you're in a some altogether different side of gathering जहाँ पर looks और smart और आपका nutritionist होना matter नहीं करता. You would start feeling underconfident. क्यों? क्योंकि outer उसको किया है हमेशा हमने अप्रिशिएट. अगर हम जर्नी को अप्रिशिएट करते ना तो हम अंदर क्या बोलते हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू दैट प्लेस, दो आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, लेट मी जस्ट ट्राई. Yeah. So I've been in some uncomfortable situations before, and this is probably one of those situations. You can. Yes. You have that talk therapy with you, which says कि that's okay. I'm not that prepared. I mean, this is not my forte, but let me just try it. पर ये तुम वो जो बच्चा मैथ्स का जीनियस है, हर टाइम टॉप कर रहा है, वो उसको सिंगिंग की किसी क्लब में भेज दिया है और वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, रादर देन वो ये भी तो फील कर सकता है आज मैं नया कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ, मैंने हमेशा मैथ्स की है. बिल्कुल. तो एडजेक्टिव्स देना और लेबल, मतलब वही वाली बात है कि लेबल करना या यू आर सो स्मार्ट इज़ नॉट अ राइट थिंग. तो वी डोंट डू इट एट नाइट. सो ऑलवेज thank the day about the worst part of the day and even the good part of the day. Nice. We always thank those things. So the 3 timings. Waking up, fetching the kids from the school and sleeping. Yes. They are the very important. अब यहाँ पर आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना, हम बहुत बिजी हैं. पर कई मदर्स होती भी हैं, नहीं बच्चों को पिक कर पाती. मे बी जब बच्चा आ जाए, हाँ, एक वर्किंग मैंने आपको मदर्स. बोला ना, जो बीच वाला टाइम है वो फिर भी आप उसको माइनस कर दो, पर मॉर्निंग और and नाइट evening. को तो हो ना. Right, आप सुबह उठाने के टाइम भी और सुलाने के टाइम भी हो, और जो बीच वाला टाइम हो अगर आप हो, देन ट्राई हैविंग द कनेक्शन टाइम विद योर किड्स. और आपको नहीं समझ आ रहा ना मैं कनेक्शन कैसे बिल्ड करूँ, दे आर एन नंबर ऑफ कनेक्शन गेम्स. हम तभी ना वी रियलाइज्ड कि हम जब इकट्ठे होते हैं हमें समझ भी नहीं आता है हम बच्चों के साथ करें भी क्या. सो वी हैव डिजाइन्ड अ न्यू प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड रिंगोज. विल बी लॉन्चिंग इट next month. Okay. Which has just the connection games. All right. You just hold that keychain in your hand and you ask questions to each other and you have fun. That's it. So we generally play wrong answers only. We ask those silly questions, what color is the sun, and they give funny answers and we laugh like ha ha ha. We have a moment. So it's not just about the crazy dance, we do those crazy games as well. So today behave like you are a sad monkey, you are giving some character and then do that. So there are a lot of connection games to spend time like that. Right. So interesting. All right, Swati. So now I come to my rapid fire. Yeah. Right. What's one thing every parent should stop saying to their child? I told you, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बुरे हो. Using the adjectives. Using the adjectives. Right. And complete this sentence. The happiest children are the ones who have the best connection with their parents. I mean, and they feel so safe with their parents.
If you could add just one subject to every school's curriculum, what would it be? I think resilience. I mean, dealing with the mental, actually enhancing your mental strength and dealing with failures and knowing those techniques, how to do that. Nice. What's more important for a child's future? Confidence or intelligence? Confidence. Confident can learn anything you want to. He or she wants to. One daily habit that can completely change a child's future. I think I shared morning and that night routine, that daily habit, क्योंकि what you actually do before sleeping, and if you sleep with gratitude, I think it changes you completely as a person. Nice. If you had only 10 minutes with your child every day, how would you spend it? Talking, talking and playing. It's just like playing few games, as in having fun or the crazy dance, and that's what we do. What's one quality AI can never replace in human beings? Strong resilience again, but then I always feel I've been talking a lot about it, so always is there 5 evolving tech, that is always evolving yourself. That's what Swaggle strives for. Willpower, having a strong willpower to do something, and having willpower comes from the mental strength as well. Ambition, having the taste for things. Yes, I want to do this, and then is confidence, and is optimizing your brain power. AI can never replace all these 5, and that belief, yes, I can, is something AI can never replace. True. Yeah. What's the biggest myth parents believe about raising successful children? Myth. Marks 99% marks आएगा तो And मेरा you are बच्चा successful. successful है. Sorry. One sentence every child should hear from their parents every single day. I believe in you. So nice. Yeah. If you could give every parent in the world just one piece of advice, what would it be? Just sit and listen to your kids. Try to understand them and be their friend. Instead of advising them a lot, learn Listen. from them. Listen to them. Listen to them. Listen, be, and learn from them. Once you become a kid in front of kids, I think you have the best bond you ever can imagine. In one line, what does a truly successful child look like? A truly successful child looks like the one who is very confident, the one who is not afraid from failures, can go to any sort of gathering, speak their heart loud, and have connections with the empathy where they understand somebody's emotion and have a very strong moral character as well, where they're doing for good and they're very confident and they're not afraid of failures. So they can do anything they want in their life, I guess. Such an interesting podcast, I should say. Thank you. Thank you so much, Swati. Yeah, thank it you was so much. really enlightening and a very different perspective I got towards parenting. Wow. Thank you That really so means a much. lot. Yeah. Thank you for bringing me here and, discussing various things where our voices can reach to more people, I guess. So.